Welcome everyone. So, how are you all? बताइए कैसे हैं आप सब? Okay, so I believe that you are keeping fine and you are doing great and you are able to understand the lecture series that we are covering. Okay, whatever is presented through this platform, I believe that it is helping you out and you are able to understand the small concepts that are there in the book. Okay, so let's begin today's class. And Ash, we'll be covering up with the rest of the portion of the chapter that is natural vegetation and wildlife. हम आपका rest of the portion cover करने वाले हैं. In the previous lecture, we started the chapter natural vegetation and wildlife, whereby we understand what is the meaning of natural vegetation, किसे कहते हैं, right? And इन द नेचुरल वेजिटेशन हमने कुछ उनकी बात करी कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वेर यू सी दैट अगर आपका हाइट चेंज होता है तो आपके क्लाइमेट में चेंज आता है, एंड सिंस देर इज अ चेंज इन क्लाइमेट यू सी दैट देर इज अ चेंज इन द वेजिटेशन एज वेल, राइट? Okay, we moved ahead discussing these important diagrams, that is the equator, the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, then Arctic Circle, Antarctic Circle. That is your important parallels of latitude. ये आपके कुछ important parallels of latitudes हैं. And I think you should know this now by heart. अब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे because I have been repeating this again and again since a very long time. जो भी हम chapter cover करते हैं कहीं ना कहीं ये diagram जरूर से हमारे बीच में आ ही जाता है. ओके, सो आई बिलीव नाउ दैट आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से अब बाय हार्ट याद हो गया होगा. एंड इवन अगर आपको जगाया जाए सोते हुए भी और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जरा इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो आई थिंक नाउ आप उसी टाइम आंसर कर देंगे, राइट? Then we moved ahead discussing the evergreen forest, tropical deciduous forest, and then we discussed about the temperate evergreen forest as well. All right. And we saw the location of the forest in the map also कि कौन सी location है, कहाँ पर बात करी जा रही है, कौन से forest के बारे में हम बात कर रहे हैं. Today we will be moving ahead with the chapter. आज हम आपके chapter के साथ आगे move ahead करते हैं. Okay, हमने आपके natural vegetation को 3 parts में classify करा था. That is your forest, grasslands and shrub. Right? Forest, grasslands and shrubs. हमने आपके 3 parts में 3 broad categories में इसको divide किया था. We started with tropical evergreen forest in the previous lecture and we came to know that tropical evergreen forest को tropical rainforest भी बोला जाता है. It is very important that you should know the other names of the forest. जैसे आपका भी 2 नाम होंगे, 3 नाम होंगे, उसी तरीके से इन फॉरेस्ट के भी 2-3 नाम होते हैं, ठीक है? सो फॉरेस्ट के पास में भी राइट है कि वो भी अपने 1-2 नाम एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जस्ट लाइक आपके और हमारे 2-3 नाम होते हैं. सो इन द सिमिलर मैनर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी एक और नाम है जिसे बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कारण क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलने का? बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज ये इक्वेटर पर लाई करते हैं, इक्वेटर वाले रीजन पर ये आते हैं और इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज फॉल करती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसकी वजह से वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा. सिंस रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, आप वाटर साइकिल पढ़ के आए हैं बिकॉज वाटर साइकिल अब आपको पता है, सो यू नो हाउ प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस कैसा होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू द ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर. ये रीजन्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, दे रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ओके, ये हमेशा आपको एवरग्रीन दिखेंगे, हमेशा आप देखेंगे दैट दे विल अपीयर ग्रीन टू यू, दैट इज व्हाई इन्हें एवरग्रीन बोल दिया गया है. ऑल राइट. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight. Even you see यहाँ पर sunlight भी enter नहीं कर पाती है, इतने dense forest होते हैं ये. Then we came understanding about tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest and evergreen forest में एक बहुत major difference है. क्या difference है? Tropical evergreen forest अपनी leaves कब shed करते हैं? There is no fixed time to it. लेकिन tropical deciduous forest अपनी leaves को dry season में ही shed करते हैं. And why do they shed their leaves? There is also a reason.
they shed their leaves in order to conserve water. All right. देन हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज, कौन कौन से फ्लोरा स्पीशीज यहाँ पर मिलती है, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ पर हमें मिलते हैं. ओके, व्हेन वी कम नेक्स्ट टू टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करी, जहां पर हमने देखा कि आपको मिड लैटिट्यूडल रीजन्स में मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में ही आपको मिलते हैं. कौन से मार्जिन हैं? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पर आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. कौन कौन से रीजन्स हैं? यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील. देन कौन सी यहाँ पर आपको प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती है? दैट इज योर hard and the softwood trees like oak, pine, eucalyptus. You can have a look to this. That is temperate evergreen forest. All right. Now we are coming to the new natural vegetation. एक नई natural vegetation पढ़ने वाले हैं आज हम. That is temperate deciduous forest. So now it is clear to you कि अगर यहाँ पर temperate लिखा हुआ है तो इस temperate का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये टेम्परेट जोन में लाए करते हैं, कहीं ना कहीं ये टेम्परेट जोन में आते हैं. इनकी लोकेशन क्या है? टेम्परेट जोन. सो एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. These are found in the northeastern parts of the USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of the Western Europe. Okay, so आप इन लोकेशंस को देखें कहाँ पर हैं ये. northeastern part of USA. So northeastern part of USA will be, this is your USA. यहाँ पर आप इसको divide करेंगे. So you will come to know the northeastern part of USA. So this is the intermediate direction जो आप निकालते हैं. So ये आपका northeastern part हो जाएगा USA का. यहाँ पर आपको temperate deciduous forest देखने को मिलेंगे. Not only this, but you can see China. This is your China. यहाँ पर आप देखें ये आपका चाइना है यहाँ पर. आई होप दैट इट इज विजिबल टू यू. चाइना, राइट. देन न्यूजीलैंड, चाइल. सो न्यूजीलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड बेसिकली यहाँ पर आपका आइलैंड नेशन है. ओके, सो यू हैव न्यूजीलैंड समवेयर हियर. इट्स नॉट क्लियरली विजिबल इन दिस मैप. देन यू हैव योर चाइल. चाइल इज हियर इन साउथ अमेरिका. चाइल आपका साउथ अमेरिका में है. इट इज रिटन ओवर हियर इफ यू कैन सी. See, it is written here child. यहाँ पर लिखा हुआ है child. I show it to you. I just make it large. That is why I asked you to have the atlas with you. See, यहाँ पर है child. It is not clearly visible in this map. आप अपने अपनी एटलस में देखें, वर्ल्ड मैप खोलिए और वर्ल्ड मैप में आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखें. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यू विल सी चाइल ओवर हियर. ओके, देन दिस इज योर चाइना. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, दैट इज ये वाला जो पोर्शन है आपका यूएसए का, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. यहाँ पर आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. तो ये कौन से रीजन है? यहाँ के टेम्परेट रीजन है. दिस इज योर टेम्परेट जोन. अगर आप देखें इसको ध्यान से, अगर आप मैप समझ सकते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये आपका पूरा 0 डिग्री आ रहा है. दिस इज योर 0 डिग्री. एंड 0 डिग्री के बाद में ये जो पूरा रीजन है ये आपका पूरा ट्रॉपिकल जोन है. दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन, राइट, जो मैंने रेड कलर से मार्क करा है. ये आपको कौन सा जोन हो गया? ट्रॉपिकल जोन हो गया. एंड नाउ इफ आई मार्क इट विथ ब्लू कलर, अगर मैं ब्लू कलर से मार्क करती हूँ ये वाला जो जोन है जहां पर मैंने स्टार लगाया है, दिस इज योर टेम्परेट जोन. सो यू कैन सी आपका चाइल्ड कहाँ आता है. सी, दिस इज योर चाइल्ड. ये पूरा जो ब्राउन आपको यहाँ दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका चाइल्ड है और ये आपका टेम्परेट जोन में आता है. दिस इज कमिंग इन योर टेम्परेट जोन. यहां से ये पूरा का पूरा आपका टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता है. दिस इज योर कंप्लीट टेम्परेट जोन. ये पूरा आपका क्या है? टेम्परेट जोन. ओके, दैट इज वाई आपको लैटिट्यूड्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन एंड अगेन कीप ऑन रिपीटिंग, लुकिंग एट द मैप्स. बार मैप्स पर देखते रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा. ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप. दैट मीन्स जो आपका यूरोप है, यूरोप कहाँ है? यहाँ देखिए, दिस इज योर यूरोप. तो यूरोप का जो आपका वेस्टर्न पार्ट है ये आपका यूरोप है. और अगर आप यूरोप का वेस्टर्न पार्ट देखते हैं, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट. सो दैट मीन्स ये वाला जो आपका पूरा पोर्शन है ये वेस्टर्न पार्ट हो गया यूरोप का. यहाँ पर भी आपको ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं.
Okay, so temperate deciduous forest, they shed their leaves in the dry season. Again आपको पता है deciduous forest की ये property है कि ये अपने leaves को shed करते हैं dry season के अंदर. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animals which are commonly found over here. ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर आपको plant species मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए. कौन से यहाँ पर एनिमल स्पीशीज मिल रहे हैं, दिस ऑल्सो यू शुड नो. बर्ड्स लाइक पीजन्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. कौन से यहाँ पर आपको बर्ड्स मिल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. पीजन देख लीजिए, यहाँ पर इसका फिगर दे रखा है. दिस इज अ मोनल. क्लियर. ये आपके टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनका पिक्चर देखिए. सो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हमने क्या पढ़ा कि आपको जैसे से हम हायर लैटिट्यूड रीजन्स में जाते हैं वहां पर ये देखने को मिलेंगे. कौन कौन से एरियाज में देखने को मिलते हैं, दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, चाइना में, न्यूजीलैंड के अंदर, चाइल में, ये सारे वो रीजन है जहां पर आपके टेम्परेट जोन लाई करता है. ओके, कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप. देन ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं. कब अपनी लीव्स को शेड करेंगे, ड्राई सीजन में. कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, यू कैन सी डियर, फॉक्सेस, वॉल्स. दीज आर द एनिमल्स विच आर कॉमनली फाउंड हियर. देन बर्ड्स कौन से हैं यहाँ पर, पीजेंट्स हैं, मोनाल्स हैं, दीज आर फाउंड ओवर हियर. ओके, ऑल राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. अब हम आते हैं आपके मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पे. सबसे पहले आप देखें कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है. बिफोर बिगिनिंग जस्ट हैव अ लुक कि आपका मेडिटेरेनियन रीजन कहां पर आता है, मेडिटेरेनियन सी कहां पर है. ओके, सो आई जस्ट शो इट टू यू ऑन द मैप. आपको मैप में दिखाया जाए कि आपका मेडिटेरेनियन सी कहां पर है, मेडिटेरेनियन ओशन कहाँ है. मेडिटेरेनियन सी है. ओके, देयर इज अ सी जिसे बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी. यहां देखिए, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी. आप अपनी अपनी एटलसेस में चेक करिएगा. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर और यूरोप कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक मेडिटेरेनियन सी है. तो इसके आसपास के जो भी रीजन होंगे उनको बोला जाता है मेडिटेरेनियन रीजन. इसे क्या बोला जाएगा, मेडिटेरेनियन रीजन बोला जाएगा. प्लीज आप अपनी अपनी एटलस में से चेक करें, देखें. You have learned that most of the east and the northeastern margins of the continent are covered by the temperate evergreen and the deciduous trees. ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाले जो मार्जिन हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो ज्यादातर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस ट्रीज से कवर्ड है. The west and the southwest margin of the continent are different. They have Mediterranean vegetation. तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन होते हैं या साउथ वेस्टर्न मार्जिन होते हैं वहां पर आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलती है. इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन द यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. हैंस द नेम. ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर आप रीजन्स देखें तो यहाँ 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि मेडिटेरियन सी से टच कर रहे हैं. ओके, देर आर 3 कॉन्टिनेंट्स. आपको कॉन्टिनेंट्स पता है. सो इफ यू सी दैट, ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. दिस इज योर अफ्रीका. ये कौन सा आ गया आपका, अफ्रीका आ गया. ठीक है. देन इधर आपको पता है ये आपका क्या है, यूरोप है. दिस इज योर यूरोप. ये पूरा का पूरा आपको कौन सा कॉन्टिनेंट लग गया, यहाँ पर यूरोप आ गया. एंड इफ यू सी दिस, टर्की, सीरिया, ये जो आपका पूरा रीजन है, दिस इज योर एशियन कॉन्टिनेंट. तो ये आपको कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, एशियन कॉन्टिनेंट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कॉन्टिनेंट्स इसके बिल्कुल सराउंडेड है. मेडिटेरियन सी 3 कॉन्टिनेंट्स के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है, यूरोप, अफ्रीका एंड द एशियन कॉन्टिनेंट. ठीक है. तो इसके आसपास के जितने भी रीजन हैं उन्हें हम मेडिटेरेनियन रीजन बोलेंगे और यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है. So it is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in the Europe, Africa and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region. अब ऐसा नहीं है कि ये जो Mediterranean region है यहीं पर ही आपको Mediterranean type of vegetation मिलेगी. No, आउटसाइड दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन जहां पर मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी के बाहर भी, इस मेडिटेरेनियन सी से दूर भी
ऐसे कई प्लेसेस हैं जहां पर आपको यही सिमिलर वेजिटेशन मिलती है. से फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न, okay, साउथ वेस्ट अफ्रीका, देन वी हैव साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का साउथ वेस्टर्न पोर्शन, देन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो दैट मीन्स जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स के जो भी वेस्टर्न मार्जिन हैं उन वेस्टर्न मार्जिन पर आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलेगी. सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको खाली मेडिटेरेनियन वेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ ये मेडिटेरेनियन रीजन्स के पास ही मिले या इस पर्टिकुलर सी के आसपास वाले जो रीजन्स है वहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है, बल्कि जितने भी वेस्टर्न मार्जिन है हमारे कॉन्टिनेंट्स के उन सभी वेस्टर्न मार्जिन पर आपको ये वेजिटेशन मिलती है. ओके, सो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको और जगह भी मिलेगी. इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू दिस रीजन ओनली. ये सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको साउथ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे मिलती है. से फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के जो आपके साउथ वेस्टर्न मार्जिन है, यहाँ साउथ वेस्टर्न मार्जिन, दिस इज योर वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा नीचे. सो यू कैन सी ये वाले जो मार्जिन है साउथ अमेरिका के, यहाँ पर आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलती है. यूएसए का कैलिफोर्निया रीजन, यूसी यूएसए, सो यूएसए का यहाँ पर कैलिफोर्निया रीजन जो है वेस्ट में, यहाँ पर आपको ये टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी. ओके, सो इट इज नॉट कंपल्सरी. ये आपको बात ध्यान रखनी है कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन जो है यहाँ के आसपास वाले रीजन्स में ये जो वेजिटेशन मिली, इसको इसलिए इसका नाम हमने मेडिटेरेनियन रख दिया. लेकिन यही सिमिलर वेजिटेशन आपको और कॉन्टिनेंट्स में भी मिलती है. एंड यू विल सी दैट इन द वेस्टर्न मार्जिन्स, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स में आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. ये जो आपका मेडिटेरेनियन रीजन है, इस मेडिटेरेनियन रीजन की एक बहुत ही खास बात है, और ये खास बात ये है, ध्यान से सुनिएगा. द वेरी यूनिक फीचर इज समर्स में यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होती है. द समर्स आर ड्राई. समर कंडीशंस जो होती है मेडिटेरेनियन रीजन की, द समर कंडीशंस आर ड्राई कंडीशन. समर्स में यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होती है, जो कि हम बाकी जगह यही पढ़ते हैं. जनरली वी स्टडी दिस ओनली दैट ड्यूरिंग समर्स वी सी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल्स, बट इन द मेडिटेरेनियन रीजन आप देखेंगे कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी समर्स में. ड्यूरिंग द विंटर्स यू विल सी रेन. रेन कब होगी मेडिटेरेनियन रीजन वाले में? दैट इज ड्यूरिंग द विंटर्स. तो जब विंटर्स आएंगे तो विंटर्स आर द टाइम जब आप यहाँ देखते हैं दैट विंटर्स आर हैविंग रेन. ओके, बट समर्स में इस रीजन में आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है. ओके, सो दीज रीजन्स, ये जितने भी रीजन्स हैं जहां पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है, उन सब रीजन्स में, इन ऑल दीज एरियाज, जितने भी यहाँ पर आपको ये कॉन्टिनेंट्स के नेम दे रखे हैं, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में आप ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी. सो यहाँ पर ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट. दैट मीन्स विंटर्स में रेनफॉल होती है लेकिन समर्स में रेनफॉल नहीं होती है यहाँ पर. Citrus fruits such as oranges, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they wanted to. There is not much wildlife here. यहाँ पर ऐसे आपको कोई wildlife नहीं देखने को मिलती है. यहाँ पर जो major characteristic है इस पूरे vegetation का, वो ये है कि यहाँ पर आपको citrus fruits मिलेंगे. It is very important. बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज आप इनको याद करिए कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन से रीजन्स में मिलते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है. राइट, यहाँ पर आपको कौन से टाइप ऑफ फ्रूट्स मिलेंगे, सिट्रस फ्रूट्स. ऑल राइट,